Hi guys, we'll be starting with lesson 8, the Civil Procedure Code 1908. Now, laws in India are divided into two, civil and criminal laws. Now let's understand what are civil laws and what are criminal laws. Firstly, criminal laws deal with crimes. Now, can you give me examples of crimes? Yeah, terrorism, then there is murder, there is theft, there is all this extortion. All of this comes under the law of crimes. Next, so these are your criminal laws that deal with crimes. Then comes civil laws. Civil laws are those laws which deal with a branch other than crimes. मतलब जो अगर crime नहीं है, तो then it will be your civil laws. These could be property disputes, these could be corporate disputes, or these could be simple breach of contracts. For a company secretary, they come across a lot of company issues. That is the civil laws. Next, if we see the criminal laws, in case of criminal laws, you have to follow the CRPC, Criminal Procedure Law. And in case of civil matters, you have to follow your Civil Procedure Code 1908. Today, the topic of the day is this, Civil Procedure Code 1908. Simply stating, how does a civil matter, what is the procedure to be followed in case of civil matters. आगे देखते हैं. प्रोसीजर अगर हमें फॉलो करना है क्रिमिनल मैटर में तो हमें जाना पड़ेगा सीआरपीसी में, और सिविल मैटर्स के अंदर प्रोसीजर देखना है तो सीपीसी 1908. ना ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है, इट हैज 158 सेक्शंस कॉल्ड एज द बॉडी, and it has rules. How many? 51 orders are given in the first schedule called as the rules. So let's begin with the chapter. So, the Code of Civil Procedure 1908. First of all, for your exam point of view, minimum 5 to 10 marks comes from this paper. Now, the judicial system. The judicial system is divided into two types of cases, civil and criminal. We've seen the civil matters के लिए you have to follow civil procedure code. उसमें will tell you what is the rules with regarding to jurisdiction, appeal, how do you file the applications, what are the remedies. Everything will be given in your CPC 1908. Now, when we see, there will be three important terms that will come in that you need to know from the exam point of view. One is your judgment, decree, and order. Judgment, decree, and order. Now, what is a judgment? A judgment is a statement, or I could call as a decision of the judge. Not only that, it also says and the reasons thereof. Reasons thereof. मतलब उसने जजमेंट क्यों पास किया. जो जजमेंट की कॉपी लोगे तो उसमें लिखा होगा कि कौन जीत गया, डिसीजन ऑफ द कोर्ट किसके फेवर में गया, और along with the reason why did he come to that decision. Now, in civil matters, there is also something called as a decree. Now, decree क्या होता है? Decree is a determination of the court. It determines the rights of the parties. Rights of parties. Conclusively determines the rights of the parties. This could either be preliminary or it could be final. So here it determines a right of the party. For example, in case of a dispute for separation or divorce, a decree can be given in the favor of the mother that the custody of the child will be with the mother. So that is a decree in favor of the mother. In case of a dispute between two brothers over a property,
a decree can be given in favor of one of the brother that who will be entitled to the possession of the property. So did it finally dispose of the entire case? No. This can be called as a preliminary decree where other matters or other issues are yet to be decided. जब भी कोई भी एक इशू कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देते हैं उसको हम लोग बोलेंगे डिक्री. अब ऐसे डिक्रीज पास होते होते फिर एंड में जजमेंट आता है. तो जजमेंट will be based on all the decrees when each issue is being resolved. फिर उसके बाद में on basis of the decree the judgment is given. And in the end एक final decree आएगा. This final decree will conclusively dispose of the entire case. मतलब केस तभी end हो जाएगा. और जिसके फेवर में डिक्री गया he will be called as a decree holder. और जिसके अगेंस्ट डिक्री गया he will be called as a judgment dator. Next, we are seeing what do you mean by an order. An order is an formal expression of the court which does not determine the rights of the parties. इसका क्या मतलब है? Can I give an order कि till the pendency of the case you will not go abroad? So don't leave India till the disposal of the case. I didn't determine who's right and wrong, but it is an order. Another thing, I can tell the witnesses to get something on affidavit. Affidavit पे लिख के लेके आओ, तो ये भी एक अपना order हो गया. Summons is an order. अब order भी होता है वो interlocutory order भी हो सकता है. Interlocutory order means what? A interim order. For example, a order to sell the goods, to sell certain goods and keep the money aside. फिर जो decide होगा उसको हम लोग वो पैसे दे देंगे. तो ऐसे अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स हो सकते हैं. Clear? So let's see what are they saying. You need to remember the section also, and this is one of the most important parts. Judgment is given under your section 2 subsection 9 of CPC, which is called as judgment. It is a statement given by the judge along with the reasons. It is based on the decree. क्या क्या राइट्स एक एक करके डिटरमाइन हो रहे हैं उसके बेस पे हम लोग को समझ में आएगा और फाइनल में एक जजमेंट कॉपी आएगी, फाइनल डिसीजन आ जाएगा. नेक्स्ट, इफ यू सी व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री. डिक्री इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2. डिक्री डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज. राइट्स ऑफ पार्टी. अभी क्या होता है डिस्प्यूट में काफी सारे इश्यूज होते हैं, तो मेनी इश्यूज कैन बी देयर. सो लेट्स से देयर आर 3 इश्यूज. व्हेन ईच इशू हैज बीन कंक्लूसिवली डिटरमाइंड एंड डिटरमाइन कर दिया कि ये इशू में कौन जीत गया, तो अगर इस इशू को कोर्ट ने कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर दिया और बोले कि ये मिस्टर ए के फेवर में गया, तो वी कैन से इट इज अ डिक्री इन ए's फेवर. बट इज द केस एंडेड येट? हैज द केस come to an end? No. So this will be called as a preliminary decree because the other issues are yet to be decided. What do you mean by decree? It's a formal expression of an adjudication. केस के अंदर कोर्ट्स फॉर्मली रिटन डाउन में अपने सील के अंदर एक एक्सप्रेशन करते हैं. It conclusively, finally determines the rights of the parties with regarding to all or some of the matters in controversy. It could either be preliminary हो जाएगा, each matter के ऊपर डिसाइड करेंगे, और after everything is given, after everything, and it could be a final decree also. Final decree will come later on. It will depend on all the preliminary decrees. Okay, so it's a formal expression, conclusive determination with regarding to all or some of the matters in a particular suit. Now, जो केस जीत गया उसको हम लोग डिक्री होल्डर बोलेंगे, in whose favor the decree was passed. Judgment dator is a person against whom a decree is given. तो जिसके राइट्स बोले कि आपके पास में इसका राइट्स नहीं है, so then they will be called as a judgment dator. Then we've seen order of the court. Okay, order of a court is basically a formal expression which is not a decree.
तो डिक्री में राइट्स डिटरमाइन होते हैं, ऑर्डर में राइट्स डिटरमाइन नहीं होता. इट्स अ मियर direction to a procedure. For example, summoning a party, summoning a document, calling for anything is a order. Difference between decree and order. सबसे पहला वाला, decree determines the rights of the parties whereas order does not. Order is just a procedural thing. अपील कहां से अलाउ करेंगे हम लोग? डिक्री से. डिक्री इज ऑलवेज अपीलेबल. कि चलो तुम्हारा राइट्स हम लोग ने डिटरमाइन कर दिया, उसमें से किसी को अच्छा नहीं लगा तो अपील में जा सकता है. Whereas order is not appealable unless permitted by law. Order is just a directional thing. को determine नहीं किया तो इतना quickly court entertain नहीं करती अपील, unless specifically law में लिखा है कि अपील कर सकते हैं against the order. अब law may provide for second appeal in case of decree. You go to court 1, it did not agree. Then you go to court 2. तो वो सब कर सकते हैं अपील में. You can keep going to higher courts, high court and supreme court. Whereas in second appeal, it is not possible in case of an order. Okay, so order में you go to one higher authority, that is it. Second appeal does not lie. Decree could be the preliminary or final, whereas order can't be preliminary, it is always final. Interlocutory order भी देखा था, that is a during the pendency of the case, court orders to sell certain perishable goods. Dispute हो रहा है between A and B, and there is milk as a subject matter of the suit. Now, till the pendency of the case might be a long time, so these perishable goods might get spoiled. So, court will order sale of the goods. सेल कर देंगे, इसका पैसा जो भी आया, सोचो 2 लाख रुपीज आ गया, उसको अलग में रखेंगे और जो भी पार्टी जीत जाएगी उसको दे देंगे. सपोज A1 will give. Why is it given? Did it determine who is right, who is wrong? No, it is merely saying कि यार it wouldn't make sense to keep the goods like that only. Let the case go on till that we'll order interim sale. It says an order of the court that please sell the goods. It has not determined who is right, who is wrong. Then we had come to one small concept called as cause of action. Now tell me one thing, cause of action means why you filed case in court. क्यों फाइल किया तुमने कोर्ट में केस? तो तुम अपना कॉज पूछ रहे, एक्शन क्यों लिया तुमने. तो देन यू विल क्राई, तुम्हारी दुख भरी दास्तां जो भी होगी वो तुम सुनाओगे. अब क्या सुनाओगे? तुम बोलोगे मेरा राइट था और मेरा राइट किसी ने इन्फ्रिंज किया या वायलेट किया. सो यू विल हैव टू प्रूव सर्टेन फैक्ट्स विच विल एंटाइटल यू टू रेमेडी. तुम्हें कोर्ट के पास में जाके अपना राइट प्रूव करना पड़ेगा कि बॉस देखो ये मेरे सारे पावर्स हैं, मेरे को ये रेमेडी क्यों मिलनी चाहिए कोर्ट से. All of those, whatever your claims that you will make is called as your cause of action. Simply stated, it is the reasons for filing the case. It sets out the facts. तुमको वो facts बताने पड़ेंगे which will justify your right to sue, obtain some compensation. ये सब तुमको प्रूव करना पड़ेगा. So तुम्हें दो चीज बतानी पड़ेगी, that you had a right और वो right किसी ने infringe किया. एंड ये किधर जाओगे? जो भी लोकल कोर्ट्स है तुम्हारी, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन हुज लोकल लिमिट्स द jurisdiction of the cause of action arises. मतलब अगर cause of action मुंबई में हुआ, cause of action मतलब violation of the right happened in Mumbai. So where will you go? You will go to Bombay High Court of Bombay. Clear? Now let's see another super important question called as jurisdiction of the courts. Now jurisdiction is the power of an authority of law. Authority of law to take up matters. Take up a matter. Okay. So let's see. Jurisdiction is, in legal terms, we can call it a jurisdiction means the extent that a authority can go to administer justice. Simply saying कि मैं
कितना एक्सेस जा सकता हूँ टू गिव यू जस्टिस. समटाइम्स द कोर्ट्स विल से देखो मैं आज चाहता भी हूँ तो आपको रेमेडी नहीं दे सकता, मेरे पास में पावर्स ही नहीं है कोर्ट के. दैट इज कॉल्ड एज jurisdiction. Now jurisdiction is divided in various parts. First let's see different kinds of jurisdiction. This is important. First is your jurisdiction over subject matter. Certain courts can try certain matters. This is called as jurisdiction over subject matter. For example, family matters go in family court. Labor matters go in labor court. Corporate matters go in NCLT, company courts. Taxation matters goes in income tax tribunal. GST matters go in GST tribunal. तो देखोगे सब्जेक्ट मैटर जैसा है, सब्जेक्ट मैटर मतलब जिसके ऊपर डिस्प्यूट हो रहा है, जिसके द नेचर ऑफ द सूट, द नेचर ऑफ द मैटर, उसके बेस पे तुम्हें उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा. सो jurisdiction to try certain matters are given to certain courts. Then comes territorial jurisdiction. Territorial jurisdiction is basically related to some geographical limits. For example, if the cause of action arose in Maharashtra, you will have to go to Bombay High Court. You can't go to Gujarat High Court. Gujarat High Court will say, I don't have jurisdiction to try the matter. Simple सी बात है, territorial jurisdiction. Then over persons, presidents, prime ministers को lower या foreign rulers को तुम lower courts में नहीं try कर सकते. Only certain courts can try try the matter for these people. Then comes pecuniary jurisdiction. Pecuniary means related to monetary or money. Like the best example for this would be consumer courts. Consumer courts have a certain monetary limit set. Like the state consumer court can take up till a certain amount. District can take up. पहले limits कितने थे? 20 lakhs तक होगा तो district. Then 20 lakhs to 1 CR रहेगा तो इधर. More than 1 CR होगा तो it will be national. So it is related or depending on your monetary limits. Jurisdiction को अलग तरीके से भी classify कर सकते हैं. On basis of jurisdiction can be again classified on the basis of original, appellate and both. That is original and appellate. When I say original means what? सबसे पहली बार सूट उधर जाएगा, वो कोर्ट के अंदर जाएगा. So it will be first filed here. So cases are first filed here. I'll give you an example. Can I directly say I want to file in the Supreme Court? नहीं नहीं, मैं मेरा केस तो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊंगा. You think ऐसा होता होगा? No. सबसे पहले तुम्हें उस कोर्ट के पास में जाना पड़ेगा जिसके पास में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब फ्रेश केस उधर फाइल होगा, नया नया ताजा ताजा केस जिधर जाता है ना वो इधर फाइल होगा. I'll give you an example. अगर सबसे पहले कंपनी के रिलेटेड और कंपनी के डायरेक्टर्स के बीच में झगड़ा होगा, लाइक इफ यू नो साइरस मिस्त्री और टाटास का झगड़ा हुआ था, तो मैटर वेंट इन NCLT. NCLT हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब सबसे पहली बार केस NCLT में जाएगा. अगर NCLT में ऑर्डर पास हो गया एंड यू आर अनहैप्पी विद दैट, देन यू विल गो इन अपील. तो एक एनक्लैट करके एक है जो अपील्स ही हैंडल करती है, उनके पास में सिर्फ अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है. एनक्लैट के पास में सिर्फ अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब दे कैन एंटरटेन ओनली अपील्स. तो यहां से होगा तो वो अपील्स में जाएगा. एंड एनक्लैट से खुश नहीं हो तो यू विल गो इन सुप्रीम कोर्ट. नाउ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव बोथ powers. They can take up matters originally also and they can entertain appeals also. अब ये केस में तुम्हें क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास में कौन सा ज्यूरिसडिक्शन यूज करेंगे वो लोग? अगर ऐसा ऐसा करके आया, पहले केस इधर आया, फिर एनक्लैट में आया, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में आया, तो ये कौन सा मैटर एक्सरसाइज कर रही है? वो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन. अगर लेट्स से
it is a matter of violation of fundamental rights, so सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है. फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होता है तब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट मैटर भी फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट मैटर फाइल कर सकते हैं. तो इफ वी सी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन एंटरटेन appeals also and can entertain in certain matter direct cases also. So this is their ओरिजिनल, मतलब सबसे पहली बारी केस फाइल होगा. अपील में वो लोग सिर्फ अपील हायर कर सकते हैं, एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव बोथ ओरिजिनल एंड अपील. Then we had done two important, super duper important matters called as section 9, section 10 and section 11. Both you need to know and note it down, in it comes in your exams. Okay, this is res sub judice and the other one is res judicata. Okay, in simple words we can call it as stay of suits. Okay, now let's understand what it is. Res sub judice. If a matter is already pending in one court, the other courts should not take up such matters. This is called as res sub judice. So if the matter is pending in Bombay High Court, the matter is pending, then one of the parties filed a matter in Gujarat High Court also. Same matter filed. Now, since the matter is pending in Bombay High Court, the Gujarat High Court will reject the application, and say we are going to stay the suit. Why? Because it is already pending before a lower court. Okay, so this is doctrine of res sub judice. अब इसके क्राइटेरिया क्या है कि कंडीशंस क्या है? सबसे पहले 2 सूट होना चाहिए, एक पहले और एक अभी. मैटर इन द लेटर शुड बी, मतलब जो गुजरात हाई कोर्ट में आया, लेटर में फाइल हुआ है, दिस इज सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली इन इशू इन द अर्लियर सूट. पहले भी वही केस चल रहा है. इट इज बिटवीन द सेम पार्टीज एंड द सूट इज स्टिल पेंडिंग. ओके, एंड इट इज इन इंडिया. So then if these conditions exist, the later suit should be stayed till the disposal of the earlier suit. This is called as doctrine of res sub judice, कि मत उठाओ, कहीं और pending है. Why? What is the purpose of this res sub judice? Because that other court can grant relief. So if a competent court is handling the matter, it can grant you relief. सेकेंड, देयर वुड बी मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस. बहुत सारे अगर अलाउ कर दिया ये, तो केसेस सब 10 कोर्ट्स में केस फाइल करना चालू कर देंगे. फिर थर्ड, अगर जजमेंट भी आ गए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन हो सकता है. एक ये ऑर्डर कुछ पास कर दिया, उनने कुछ और ऑर्डर पास कर दिया, तो झगड़ा हो जाएगा, सेंस नहीं बनेगा. तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई केस पेंडिंग है तो दूसरी कोर्ट्स उस मैटर को नहीं उठाएगी. सो व्हाट इज द लैंग्वेज? नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद अ ट्रायल which is in substantially, directly and substantially in issue in a previously instituted case between the same parties among the same title, and it is pending in some court in India. तो इंडिया की कोई कोर्ट में पेंडिंग है, बट अगर यही यूके कोर्ट होता ना तो उठा सकते थे. यूके कोर्ट में होता तो इंडिया में उठा सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ इंडियन कोर्ट. So pendency of a suit in a foreign court does not stop the court in India from trying such suit. अब क्यों रखा है ये section 10 is enacted to prevent courts of same, concurrent means same jurisdiction, from simultaneously trying two parallel cases on the issue so as to avoid conflict of decision. Now coming to your section 11, res judicata. इसके बाजू में तुम एक वर्ड लिख सकते हो कॉल्ड एज नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस. व्हेन आई से वेक्स्ड ट्वाइस मींस व्हाट? शुड बी पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस. सो व्हाट हैपेंस? इधर एक केस था, देयर वाज अ केस
that case punished a party. Punished a party. लेट्स से उसको पनिश कर दिया, उसको जो भी सजा थी दे दी. अब वापस उसी बात पे केस उठ सकता है क्या? उसी ऑफेंस पे, वही सेम चीज, वही डेट पे ऑफेंस हुआ, वो सब कुछ सेम. सो कोर्ट सेज कि नहीं, एक बार अगर पनिशमेंट हो गया तो वापस वो मैटर नहीं उठेगा. सो इट इज सिंपल, बट लॉ में लिखना जरूरी रहता है. डील्स विद डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा. बार और रिस्ट्रेन ऑन रेपिटेशन ऑफ लिटिगेशन ऑन द सेम इशू. तो सेम इशू पे वापस अगर केस रीओपन हुआ तो बोलेंगे नहीं नहीं, वो ऑलरेडी नीचे डिसाइड हो चुका है. It is a pragmatic principle, important principle, that there must be a limitation or end to litigation. The doctrine underlines that no person should be punished for the same cause. It prevents two different decrees on the same subject. अभी समझते क्या है इसके भी क्या कंडीशंस हैं. सबसे पहले क्या होगा, एक पहले केस होना चाहिए, वो केस में जज हियरिंग हो चुकी होगी, पनिशमेंट हो गया होगा. फिर बाद में एक नया केस फाइल हो रहा है उसी बात पे, उसी मैटर पे, और वापस उसको पनिशमेंट करवा रहा है. तो कोर्ट बोलेगा एक बार पनिश हो गया वही सेम चीज के लिए, अब वापस नहीं हो सकता. सिंपल सी बात है. द मैटर इन अ फॉर्मर सूट is also directly and substantially an issue in a later suit. The former suit has been decided, it was heard and finally decided, and it is between the same parties litigating under the same issue under the same title. In short, the principle applies that where an issue which has been raised in a subsequent suit, later on suit में आ चुका है, which was already in a former suit between the same parties, which was heard and finally decided, उसके बीच में आता है. अब आता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा. कंस्ट्रक्टिव मीन्स व्हाट? डीम्ड. Constructive means deemed. Res judicata means, like you could say, punished. So for matters which could have been taken up but were not taken up. अब मैटर ये ओपन हो सकता है क्या? सोचो अगर मैं 3 एलिगेशन लगा सकता था, I could have put 3 allegations, but I did not. I just put 2 allegations only. Only 2 allegations were put. तो वो एक एलिगेशन जो मैं भूल गया उसके लिए मैं वापस केस कर सकता हूं? यू थिंक कोर्ट अलाउ करेगी? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज कोर्ट बोलेगी तुम पहले रह सकते थे ना मैटर, या ऑब्जेक्शन उठा सकते थे, व्हाई डिडंट यू तुमने क्यों नहीं उठाया? अब ये जो मैटर पास हो गया, अब हम अज्यूम करेंगे ये भी मैटर खत्म हो गया, अब इसको वापस हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे. सो व्हाट इज द लैंग्वेज? मैटर्स or issues which could have been taken up as a ground for defense or attack in a former suit, which were not taken up, will be deemed that they are also been solved, and court will not end. What is the purpose? They want to bring an end to litigation. The party should not be harassed on the same issues which was already decided. Time of the court will be wasted. It is a rule of convenience and not a rule of absolute justice. मतलब हम लोग हर एक चीज को उठाने के लिए एब्सोल्यूट जस्टिस नहीं करने वाले. कोर्ट कन्वीनियंस देख रहा है कि पहले बोल सकते थे ना तुम, अभी नहीं बोला. व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रेस जुडिकेटा? देयर मस्ट बी 2 suits among the same people litigating under the same title, and a competent court in India was handled it, tried it, and decision was also passed. अब डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड रेस सब्जुडाइस, मार्क करो, इंपॉर्टेंट. क्या लगता है? एक सेक्शन 10 में है और एक सेक्शन 11 में है. रेस सब्जुडाइस सेक्शन 10 में है और रेस जुडिकेटा
इज इन 11। ये क्या होता है, मैटर पेंडिंग होती है एक कोर्ट में तो दूसरी कोर्ट्स नहीं उठाती है। रेस जुडिकेटा में क्या होता है, वहां पे मैटर डिसाइड हो गया होता है, सो इट इज डिसाइडेड। तो कोर्ट्स बोलती है ऑलरेडी डिसाइड हो गया तो हम इसको वापस नहीं उठाएंगे। और ये क्या है, मैटर अगर ऑलरेडी पेंडिंग है तो दूसरी कोर्ट इसको नहीं उठाएगी। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। नेक्स्ट वी हैड सीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दैट इज सेट ऑफ, काउंटर क्लेम एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स कम्स इन द एग्जाम। सेट ऑफ क्या होता है, पहले उसका लीगल लैंग्वेज लर्न करते हैं। सेट ऑफ इज गिवन अंडर ऑर्डर 8 रूल 6। Set off means the reciprocal acquittal of claims, which has the effect of extinguishing the plaintiff's claims to the extent of the amount claimed by the defendant as a counterclaim. Simple example पढ़ोगे समझ में आएगा। A claims 1 lakh rupees from B and B claims 25,000 from A. मैं तुम्हारे पास से 1 लाख रुपए मांग रहा हूं और तुम मेरे पास से 25,000 मांग रहे हो। तो अल्टीमेटली कोर्ट क्या डिसाइड करेगी कि भाई वो 25,000 सेट ऑफ कर दो और खाली 75,000 का ऑर्डर आएगा। दिस इज कॉल्ड एज सेट ऑफ। सो आई कैन से रेसिप्रोकल अक्विटल ऑफ क्लेम्स। वन पार्टी इज आस्किंग एंड द अदर पार्टी इज ऑल्सो आस्किंग, तो जो कॉमन अमाउंट से उसको सेट ऑफ कर देते हैं। ओके, दिस कॉल्ड एज अक्विटल ऑफ क्लेम, where the plaintiff's claim will be set off against the defendant's claim and the order for the balance amount will be passed. Simple. So this is one of the most common defenses taken by the these defendant. So these are the defenses कि वो 1 लाख मांग रहा है बट उसको भी मेरे को देना बाकी है, तो कोर्ट सेट ऑफ कर देगी अमाउंट को। दूसरा रहता है सेकेंड टाइप ऑफ डिफेंस दैट यू कैन टेक इज अ काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ क्रॉस सूट। क्रॉस सूट में क्या होता है, देयर इज अ इशू बिटवीन द प्लेंटिफ वर्सेस द डिफेंडेंट। प्लेंटिफ ने एलिगेशन डाला डिफेंडेंट पे, बट डिफेंडेंट बोलता है कि मैं कुछ भी इसका अग्री नहीं कर रहा हूं, ये सब गलत है, बल्कि मेरे को इसके ऊपर केसेस करने चाहिए, और वो क्लेम कर रहा है यहाँ पे। तो द डिफेंडेंट रिजेक्ट्स द क्लेम्स ऑफ द प्लेंटिफ एंड इंस्टेड मेक्स अ क्रॉस सूट। मतलब वो एलिगेशंस डाल रहा है एंड कोर्ट इज सेइंग कि भाई ये तो खुद क्लेम करने वाला ही है। सोचो यहाँ पे प्लेंटिफ 1 लाख क्लेम करा था, ये बंदा क्रॉस सूट करके 10 लाख रुपए क्लेम कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्लेमेंट कौन बड़ा हो गया, डिफेंडेंट। This can be called, this is another kind of a pressure building tactics by the defendant on the plaintiffs, where he says कि तेरा तो हटा, मैं केस करता हूं तेरे पे। तो वही सेम सूट के अंदर डिफेंस में वो काउंटर क्लेम करता है कि ही इज नाउ क्लेमिंग, अल्टीमेटली प्लेंटिफ बैकफुट पे आ जाएगा और प्लेंटिफ को देने आ रहा है अभी। सो डिफेंडेंट in a suit, in addition to his pleading of set off, will make a counter claim against the plaintiff. तो अमाउंट सेट ऑफ भी कर देंगे ना, तो नेट फिगर में इसको ही देने आ रहा है अभी प्लेंटिफ को, तो दिस विल नाउ बी कॉल्ड एज अ काउंटर क्लेम। द थर्ड काइंड ऑफ अ डिफेंस इज कॉल्ड एज अ इक्विटेबल सेट ऑफ। नाउ इक्विटेबल सेट ऑफ is a kind of set off in which you are making a claim for uncertain sum of money. Uncertain sum of money मतलब क्या होता है, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है इधर कितना, 1 लाख। अब डिफेंडेंट भी तो चुप नहीं बैठेगा, डिफेंडेंट के भी लॉयर्स बोलेगा आप भी अटैक करो, छोड़ना नहीं उसको। तो डिफेंडेंट भी क्लेम कर रहा है, बट डिफेंडेंट डजंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट। कभी कभार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स में अमाउंट लिखे रहते हैं कि भाई इतना अमाउंट देना है, 25,000 का चेक बाउंस हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है,
बट वो क्लेम कर रहा है, और क्लेम कर रहा है, कोर्ट को बोल रहा है मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, आप ही बैठ के डिसाइड करके मेरे को बताना। फॉर एग्जाम्पल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पेंसेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डिफेंडेंट इज आस्किंग फॉर अ क्लेम। अब क्लेम में वो बोल रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, कोर्ट ही बताएगी मेरे को। सेकंड, आई गिव यू अनदर एग्जांपल, प्लेंटिफ इज आस्किंग एन अमाउंट फ्रॉम द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट इज सेइंग कि भाई प्लेंटिफ ने मेरे को मेरा रेप्यूटेशन खराब कर दिया। अब कितना अमाउंट खराब किया रेप्यूटेशन, वो आप असर्टेन करो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो व्हेन यू क्लेम अ अनअसर्टेन सम ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड एज इक्विटेबल सेट ऑफ। तो सेट ऑफ में also you're asking for a set off, but you don't know exact amount, you put that onus to find out that ascertain the amount is on the court. In India there is a distinction between legal and equitable set off is recognized. The common law in England do not recognize equitable set off. Court बोले in England वो सब नहीं entertain करते equitable set off. Then comes temporary injunction. Now injunction by itself is an order of court. It is an order of court. Directing a party, it directs a party to do or not to do something, or not to do an act till the pendency of the case. समझते हैं? अब क्या होता है कि केस चलते 3 साल के लिए, अब 3 साल तक, तब तक ये क्या होगा स्टेटस, तो कोर्ट ऑर्डर पास कर दे कि भाई 3 साल तक आप ये करो या आप ये मत करो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ टेम्पररी इंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सोचो देयर इज अ डिस्प्यूट, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन, और ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जैसे केस फाइल करते हैं ना हम लोग, सोचो मैंने एक केस फाइल किया, इमीडिएटली आई आस्क फॉर टेम्पररी इंजंक्शन। तो आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एप्पल वर्सेस सैमसंग। अब ये लोग का था अबाउट अ टैब। अब ये लोग ने ना गैलेक्सी टैब बनाया था सैमसंग ने, विच वाज एग्जैक्टली कॉपी ऑफ एप्पल का आईपैड। तो यहाँ पे गैलेक्सी टैब बनाया था और यहाँ पे था एप्पल का आईपैड। अब पूरी टेक्नोलॉजी सेम, लेआउट सेम, एवरीथिंग सेम, सो एप्पल फाइल्ड अ केस ऑन सैमसंग for using their technology, using their intellectual property, etc. अब US कोर्ट में मैटर था, मैटर will go on and मैटर went on for 3 years. But 3 years तक क्या होगा? तो Apple also filed a case of for temporary injunction restricting Samsung, restraining Samsung from selling tabs, from selling Galaxy tab. अब यूएस कोर्ट ने बोला कि आप बोल रहे हो कि जब तक ये केस फाइनल डिटरमाइन नहीं होता है, सैमसंग इज नॉट अलाउड टू सेल द गैलेक्सी टैब्स इन यूएसए। सो सैमसंग सेड कि हमको तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर हमको अलाउ नहीं करने दिया 3 साल तक, तो पूरी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी। सो जब भी टेम्पररी इंजंक्शन देखते हैं, कोर्ट्स पहले प्राइमा फेसिया देखती है, ऑन द फेस ऑफ इट, कि कौन सही है। अब एप्पल का पहले आया था आईपैड, तो देर इज अ वेरी हाई लाइकलीहुड कि सैमसंग ने कॉपी किया होगा, क्योंकि अगर एप्पल क्या बोल रहा था, अगर इनको अलाउ कर देंगे सेल करने के लिए तो हमारा इररिपेरेबल डैमेज हो जाएगा गुडविल को, एंड सो ऑन। सो ऑर्डर व्हेन टेम्पररी इंजंक्शन वाज गिवन इन फेवर ऑफ एप्पल, रिस्ट्रेनिंग Samsung from selling the tabs in USA. And later, after 3 years, it was found that Apple was correct. And Samsung was asked to give compensation to Apple. तो सैमसंग को इतना खराब लगा ना कि उनको हार भी गए केस, तो वो लोग ने ना चिल्लर, ऐसा पूरा न्यूज में था ऐसा, दैट जो कॉम्पेंसेशन भी था ना, वो लोग ने $1 के कॉइन्स दिए थे और ऐसे 10 ट्रक्स भर के भेजा था टू पे द कॉम्पेंसेशन जस्ट आउट ऑफ एंगर, but ultimately they was debunked by
सैमसंग. ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन. दूसरा एग्जांपल है, मैं कोर्ट में ऑर्डर करता हूँ भाई को बोलो प्रॉपर्टी बेच ना दे जब तक ये फाइनल डिटरमाइन नहीं होता है. सो दिस विल ऑल बी डन. द टेम्परेरी इंजंक्शन इज गिवन व्हेन ऑन बेसिस ऑफ प्राइमा फेसिया एविडेंस. देख के क्या लग रहा है ऑन द फेस ऑफ इट, बिकॉज केस एंड होने को तो टाइम लगेगा, तब तक के प्राइमा फेसिया बेसिस पे क्या लगता है उस बेसिस पे ऑर्डर पास होता है. अब किस टाइप का हो सकता है कि प्रॉपर्टी डैमेज कर देगा, वो उसको रोको डैमेज करने से, एलिनेट कर देगा प्रॉपर्टी, सेल ऑफ कर देगा. प्लीज रिस्ट्रेन हिम. दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर्स. तो उसके क्रेडिटर्स जो है एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कि भाई ये तो बेच डालेगा प्रॉपर्टी, तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, आप उसको रिस्ट्रेन करो टिल द फाइनल वर्डिक्ट नॉट टू सेल द प्रॉपर्टी. Okay, and in any way try to cause any injury to the property. So कोर्ट ऑर्डर पास करेगा रिस्ट्रेनिंग द पार्टी कि भाई प्रॉपर्टी को डैमेज मत करना, जैसा चल रहा है वैसा चला, जब तक ये फाइनल ऑर्डर नहीं आता है. दिस इज द केस ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन. नेक्स्ट कम्स डिलीवरी ऑफ समन्स बाय कोर्ट. नाउ व्हेनेवर अ प्लेंट इज फाइल्ड, ओके, सबसे पहले क्या होता है, एक प्लेंट फाइल होता है कोर्ट के अंदर. Plaint is nothing but a complaint is filed in the court. Now plaint कौन फाइल करेगा? प्लेंटिफ फाइल करेगा कि डिफेंडेंट? जो केस कर रहा है वो कंप्लेन करेगा, तो प्लेंट विल बी फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ. अब कोर्ट क्या करती है, डिफेंडेंट को भी तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई तुम अपने आप को आके डिफेंड कर सकते हो, अपना डिफेंस क्या है तुम्हारा, तुम आओ. तो कोर्ट क्या फोन कॉल करेगी क्या? कोर्ट क्या करेगी, एक समन्स भेजेगी डिफेंडेंट को. समन्स इज बेसिकली अ कॉल. इन इंग्लिश इफ यू से समन द वेटर, मतलब कॉल. तो कॉल करेगी वो. कैसे कॉल करेंगे? एक लेटर बना के पोस्ट से भेजेंगे डिफेंडेंट को. या जज क्या कर सकता है, जज कोई ऑफिसर को बुला सकता है और उसको बोलता है जाओ उसके घर पे देके आओ. अब जब भी होता है ना समन्स, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिफेंडेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो पहली बार होगा, दूसरा समन्स आएगा, अगर वापस तुमने रिजेक्ट किया ना दूसरे समन्स को, तो लोग चिपका ही देंगे कहीं पे भी तुम्हारे घर के उधर, और उसका फोटो ले लेंगे कि हमने चिपका दिया. एंड इट विल बी डीम कि आपको नोटिस मिल चुका है कि कोर्ट में तारीख कौन सी है. समन इज एन ऑर्डर टू अपीयर बिफोर द जज. द कोर्ट इश्यूज अ समन्स टू द डिफेंडेंट and delivers this summons through one of its officers. This shall be delivered in the according to the court, according to the procedure and CPC. मतलब कैसे जाएगा, किसको देगा, कितने बजे. So where the defendant resides, within whose jurisdiction the court is there, in which is empowered to accept the service of the summons. The summons shall be sent either to the proper officer or it could be couriered as approved. A copy can be given by the registered post. If a person is trying to avoid the summons, then it will be stuck up on his any conspicuous part of the place. मतलब अगर कोई बात summons को escape करने की कोशिश कर रहा है, avoid करने की कोशिश कर रहा है कि कोर्ट का ऑर्डर लू ही नहीं, मैं बोलूंगा मेरे को पता ही नहीं है, तो लोग आके चिपका के ही जाएंगे घर पे. इन केस ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर अपनी कंपनी को अगर समन्स आया कोर्ट से, तो कभी भी याद रखना, एज अ लॉयर आई एम टेलिंग यू, नेवर गेट स्कैर्ड ऑफ समन्स. यू शुड गो अहेड एंड रिप्लाई टू दैट थिंग and deny the charges, that all the charges given are baseless. We completely deny. Because अगर तुम escape करोगे ना, तो तुम्हारा फॉल्ट दिखता है वो, फिर वो केस में तुम्हारा जज तुम्हारे फेवर में नहीं आएगा इतना. सो अगर कॉर्पोरेशन को होता है तो कंपनी सेक्रेटरी को आ सकता है लेटर, डायरेक्टर को आ सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे आएगा समन्स. पार्टनर रहेगा तो किसी के भी घर पे जा सकता है. इफ द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर, ये भी मार्क करो, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है ये. मैं क्यों बोल रहा था कि रिप्लाई करके जाना चाहिए कोर्ट में, क्योंकि अगर तुम नहीं अप्लाई किए ना तो एक्स पार्टी ऑर्डर आ जाएगा.
एक्स पार्टी ऑर्डर मतलब वन साइडेड डिसीजन, वन साइडेड ऑर्डर मतलब ऑर्डर इन प्रेजेंस ऑफ वन पार्टी होनी, तो वो जो बोलेगी ना वो कोर्ट मान सकते हैं और वो ऑर्डर पास कर देंगे। अगर ऑर्डर पास कर दिया तो तुमको फिर बाद में शॉक लगेगा और फिर तुमको कोर्ट में जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो फॉर अ यू विल हैव टू गो फॉर अपील अगेंस्ट द एक्स पार्टी ऑर्डर। ये बता रहे कि अगर एक्स पार्टी ऑर्डर तुम्हारे अगेंस्ट पास हो गया है, वन साइडेड ऑर्डर तुम्हारे अगेंस्ट पास हो गया है, तो मैं अपील में जाऊंगा। अपील में जाके क्या बोलेगा, मेरे को पता नहीं था ऑर्डर था, मेरे को नोटिस नहीं मिला था, मैं इंडिया में नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी, मेरा ये इशू था, मैं ऑलरेडी कोई दूसरी कोर्ट में था, मैं खुद जेल में था, कुछ भी रीजन, मैंने अपना एड्रेस बदल दिया था। ऐसा करके मैं अपील में जाऊंगा कि वो जो एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया है लोअर कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट, उसको सेट असाइड करो। तो क्या क्या रेमेडीज है अगेंस्ट द एक्स पार्टी ऑर्डर? यू कैन गो इन अपील, यू कैन गो टू द सेम कोर्ट एंड आस्क फॉर अ रिव्यू ऑल्सो, कि भाई तुम खुद ही अपना जजमेंट देख लो। ही मे अप्लाई फॉर सेटिंग असाइड फॉर द एक्स पार्टी डिग्री। He can also a suit can also be filed to set aside the ex parte decree by fraud, but no suit shall lie for non-service of summons। तो मैं कोर्ट के पास में ये भी जाके बोल सकता हूँ कि फ्रॉड से ये सब डिसीजंस पास हुए हैं। एफिडेविट भी रहेगा। Sir, I want to ask a question. या So, sir, you then we come to affidavit. Affidavit is a statement on oath. Sometimes if any witness is there, सो विटनेस को बोलेंगे कि आप लोग ने जो भी देखा आप वर्बली मत बोलो, लिख के लेके आओ, गेट इट ऑन एफिडेविट। एफिडेविट इज नथिंग बट अ प्रॉमिस इन राइटिंग, बट व्हाट इज द डिफरेंस, दैट इफ यू मेक एन एफिडेविट एंड इट टर्न्स आउट टू बी फ्रॉड, it turns out to be wrong, then it is a criminal act or it is a crime to lie on affidavit. Now coming to one of the most important parts of the chapter, that is your reference, review, and the third one is revision. You need to know with the sections. So section, write it down with me, 113, 114 and 115. So section 113, 114 and 115. This is about reference, this is about review, and this is about revision. Okay, now let's understand what is reference. Tell me one thing, in your college अगर तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आती है तो तुम सीनियर्स के पास में जाके पूछते हो कि नहीं? कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन टेक द मैटर टू द सीनियर कि देखो ये मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं मेरा ये ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है, आप प्लीज मेरे को बताओ। So same way, smaller courts, lower courts, when they find that a point of law needs to be clarified, they can take up the matter to the High Court, and then High Court will pass their order. So at any time before the judgment, judgment अभी तक pass नहीं किया है, in which a suit has been instituted, a court may state a case and refer the same for the opinion of the High Court, and the High Court may pass any order as it deems fit. So we go and we ask the High Court कि इस पे क्या है आप बताओ, और जो भी High Court ने order दिया वो फिर बाद में हम लोग मान सकते हैं, वो clarification दे सकते हैं. This is called as a, you are referring, simple सा word, you refer matter to High Court. Okay, then comes review. Review क्या होता है कि तुम्हारे एग्जाम में खराब रिजल्ट आया, सोचो तुम्हारे इसमें एग्जाम में यू आर अ टॉपर और टॉपर को गलती से फेल कर दिए, तो मुझे बोलो कि वो टॉपर क्या करेगा? व्हाट वुडंट ही फाइल फॉर अ रिवीजन, मतलब रिव्यू के लिए फाइल करेगा? रिव्यू क्या होता है? रिव्यू इज अ रिकंसिडरेशन, कि भाई आप प्लीज रिकंसिडर कर लो, रीवैल्यूएशन के लिए डालते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज रीवैल्यू या रीचेक कर लो। सो सेम में जब भी कोर्ट का मूड होगा ना, वो लोग रिव्यू करेंगे,
जब मैं मूड बोल रहा हूं मतलब क्या, देर इज एम से क्या है, मिस्टेक अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। अगर एक मिस्टेक हो चुका है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, इट इज कॉल्ड एज, एक वो मिस्टेक हो गया है। ओ क्या है, एनी अदर रीजन। और डी क्या है, डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फैक्ट, of a new matter of evidence which was not known at the time of filing the case। तब कोर्ट अपना जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। समझते क्या है? मुझे बताओ, ये रिव्यू में हायर कोर्ट के पास में जा रहा हूं कि सेम कोर्ट के पास में? यू कैन अनम्यूट एंड टेल, एम आई गोइंग टू द हायर कोर्ट और टू द सेम कोर्ट? Same code. सेम कोर्ट, परफेक्ट। तो आई गो टू द सेम कोर्ट एंड आई टेल देम प्लीज रिव्यू योर जजमेंट। तो कोर्ट बोलेगी क्यों रिव्यू करूं? तो मेरे को मूड बताना पड़ेगा, MOD। There was a mistake apparent on face of record, मतलब a very basic mistake, apparent mistake, obvious mistake has been made। और O, any other sufficient ground। D is for, मैं बोल रहा हूँ रिव्यू कर लो, बोलेंगे क्यों? मैं बोल रहा हूँ देखो नया एविडेंस आया है, वो एविडेंस मेरे पास में पहले नहीं था। तो कोर्ट चाहे तो ये मैटर को रिकंसिडर, रीचेक, रिव्यू कर सकती है। जैसे हम लोग भी कभी एग्जाम में रिजल्ट सही नहीं आया तो सेम अथॉरिटी को देंगे, आप रिव्यू करो। एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ अग्रीव्ड बाय अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट may apply for a review of the judgment to the court which passed the decree on any of the following grounds। Then that court will listen to your matter and then pass a order as it deems fit। So we finish reference. Reference is going to the high court and referring a particular matter। Review is going to the same court and telling please review your judgment। Revision क्या होता है ना? Revision is when the higher court is angry। This is the higher court। Higher court calls for the record of a lower court। So जो एकदम ही stupid lower court है, this is a lower court। अब ये लोअर कोर्ट क्या कर रही है, कुछ भी रॉन्ग जजमेंट पास कर रही है। सो दे पास्ड अ रॉन्ग erroneous judgment। ओके, तो हायर कोर्ट will send an application to the lower court and it will call for records of a case and will check the judgment। And if it is found that it was against the law, then it will squash the judgment। It will squash, or I could say set aside the judgment। अब ये हायर कोर्ट क्यों गुस्से में है? क्योंकि हो सकता है लोअर कोर्ट ने एक ऐसा मैटर उठा दिया जो उसके जूरिसडिक्शन में ही नहीं है, जिसके बारे में उसके पास में जूरिसडिक्शन नहीं है, एक्सेसिव जूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर दिया, या एक इलीगल जजमेंट पास कर रहे हैं। तो सी, नाउ टेल मी वन थिंग, ये जो एक्शन कौन ले रहा है, रिवाइज कौन कर रहा है? रिवाइज कौन कर रहा है जजमेंट? हायर कोर्ट। किसका जजमेंट रिवाइज कर रहे हैं? लोअर कोर्ट का। क्यों रिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग ने एरनियस जजमेंट पास किया है। सो द हाई कोर्ट मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स of any case which has been decided by any court subordinate to such high court in which no appeal lies। तो अपील में नहीं जा सकते क्योंकि अपील का प्रोविजन ही नहीं होगा लॉ में, और हायर कोर्ट ने कोई रॉन्ग जजमेंट पास कर दिया। If such subordinate court appears to have exercised a jurisdiction which is not vested in law, or which has failed to exercise a jurisdiction in law, or which has acted illegally or its jurisdiction illegally or with material irregularity, the High Court may make such orders as it deems fit। Now, after reading this, you tell me, अगर लॉ में अपील के बारे में प्रोविजन है, लेट्स से यहाँ पे लोअर कोर्ट से अपील का प्रोविजन दिया हुआ है लॉ में, वो मैटर के लिए अपील इज देयर, यू थिंक दिस सेक्शन कैन बी इन्वोक्ड? सेक्शन 115 कैन बी इन्वोक्ड? Section 115 can be invoked when appeal is provided in law।
तो हायर कोर्ट बोलेगा मैं क्यों आऊं बीच में, इन्वॉल्व क्यों हो, पार्टी जा सकती है ना अपील में, तब सुन लूंगा मैं। बट अगर कोई मैटर में लॉ में लिखा है कि नो अपील लाइज, अपील नहीं है लॉ के अंदर, तो देन तुम वो पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती, अपील में नहीं जा सकती है। तो हायर कोर्ट के पास में एक फिर भी एक वो रखा हुआ है पावर, कि अगर हायर कोर्ट को लगा कि कोई लोअर कोर्ट ने रॉन्ग जजमेंट पास कर दिया है, इलीगली पास कर दिया है, तब वो लोग कॉल कर सकते हैं रिकॉर्ड और उसको सेट असाइड करके नया जजमेंट पास कर सकते हैं। समझ में आया? रेफरेंस रिव्यू रिविजन, सो यू शुड नो, एंड आई थिंक यू कैन राइट इट डाउन विथ मी ऑल्सो, just for understanding. This is, you are referring the matter to the high court. In review what happens, you recheck, और रीचेक कब करेंगे, जब उनका मूड होगा। मूड मतलब क्या, मिस्टेक apparent on face of record, any other reason, or discovery of a new fact which was not known that time. And revision में क्या होता है, you squash, set aside the judgment, erroneous judgment, और ये कौन कर रहा है, हायर कोर्ट। लेट्स सी फर्दर नेक्स्ट। अब सूट्स, ये भी मार्क करो, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है, बाय और अगेंस्ट माइनर्स। सोचो ये सूट है, यहाँ पे सूट मतलब केस। अब ये एक ईविल अंकल है, इज अ ईविल अंकल, और ये एक, इसके मम्मी डैडी है नहीं, ये छोटे बच्चे के, तो ये माइनर है। ओके, so this guy is a minor. Tell me one thing, can this minor file a case? Can minor sue? Yes or no? Can minor sue? प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैटर है, इसका कोई भी नहीं है। और टेल फास्ट बिफोर ही क्राइज। No. नो। सो आइडियली तुम्हें लग रहा है कि इसको नॉलेज ही नहीं होगा कि इसके राइट्स क्या है, छोटा बच्चा ही है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि लॉ प्रोवाइड करता है, इसकी तो प्रॉपर्टी बेच देगा कोई भी। सो कोर्ट सेज कैन अ माइनर सू, आंसर है ही हिमसेल्फ कैन नॉट सू, बट इट कैन बी डन विद अ गार्डियन। गार्डियन है तो द गार्डियन अटैच होगा तो कर सकता है, बट व्हाट इफ देयर इज नो गार्डियन, देन उसका नेक्स्ट फ्रेंड काउंट होगा। अब फ्रेंड मतलब क्या, कोर्ट विल अपॉइंट अ गार्डियन, कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन से हो सकता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ नेक्स्ट फ्रेंड। सो कैन अ minor sue, answer is no, not by himself, but yes, with the help of his guardian or his court appointed guardian, which is called as next best friend. Simple. Next, can a minor be sued? Yes or no? Can a minor be sued? No. Now again you think it is no, but what if this minor is there, he himself, he has not done anything, but he is inherited a property which is under dispute, and the parents have died, so now the litigation will go on against the minor or no, minor's property I should say. तो आंसर इज यस, ये भी चल सकता है, कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन या कोर्ट अपॉइंटेड लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, इंडिविजुअल लायबिलिटी नहीं आ रही है उसके ऊपर, क्रिमिनल केस नहीं हो रहा है, बट अगर इसकी प्रॉपर्टी है, इसके नाम पे इनहेरिट हुई है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, तो माइनर के अगेंस्ट भी चलेगा, बट गार्डियन विल बी अपॉइंटेड। नाउ ये केसेस तो चलते ही जाते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ओके, चलते ही जाएगा। फिर बाद में व्हेन द माइनर अटेन्स मेजॉरिटी, ठीक है, तो फिर बाद में वो डिसाइड कर सकता है कि वो गार्डियन को बोलेगा बाय बाय, मैं खुद ही केस करूंगा। तो व्हेन द माइनर अटेन्स मेजॉरिटी, ही कैन कंटिन्यू केस इन हिज ओन नेम ऑल्सो। नाउ सो माइनर के अगेंस्ट भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है। सोचो मेरे पेरेंट्स, या सोचो मैं
एक प्रॉपर्टी में रह रहा हूं जो डिस्प्यूटेड है, मेरे बच्चे हैं, अभी जस्ट बॉर्न हुआ है बच्चा, और इतने में सोचो पेरेंट्स मर गए, तो बच्चा अकेला बच गया, जो एक्चुअल लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल एंटाइटलमेंट है तो चलेगा केस उसके प्रॉपर्टी पे ऊपर। क्लियर है ना? सो लेट्स सी व्हाट लॉ हैज टू से। अब पहली बात, माइनर का एज, हाउ हु आई कॉल एज अ माइनर, क्या एज होगी माइनर की? और व्हेन आई कैन से व्हाट इज द एज फॉर मेजॉरिटी, you can unmute and tell. 18 years. Very good. So below 18 are minors, 18 and above are major. But अगर कोर्ट ऑफ वार्ड्स होते ना, कोर्ट ऑफ वार्ड्स, तब उसके लिए मेजॉरिटी माइनॉरिटी के लिए 21 years रखा है. So let's understand what is this. Normal cases में 18 years, but अगर a child is kept under court of wards, his majority will be considered at 21 years. तो अगर कोर्ट ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, अगर सोचो कोई अनसाउंड माइंड का चाइल्ड है, या कोई चाइल्ड है ओके जो अनसाउंड माइंड का है, या कोर्ट को लग रहा है कि लीगली सेंसिबल नहीं है, तो उसकी एज ऑफ मेजोरिटी क्या रखते हैं वो लोग? 21. सो कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियंस के लिए, या कोर्ट जिनका ध्यान रख रहा है बच्चों का, उसकी एज कितनी रखेगी मेजोरिटी के लिए? 21. So let's start and see what law has to say about this. A minor is a person who has not completed 18 years of age. Normally, for those persons or property by a guardian which has been appointed by court, for whose property is under the court of wards, a court for mentally challenged, age of majority is completed on 21 years. Every suit by a minor shall be instituted in his name by a person in which shall be called as a next friend of the minor. The next friend should be a person who is of sound mind and who has attained majority. ऐसा next friend तुम्हारे छोटे उसके छोटे भाई को नहीं ले सकते. He has to be at least attained majority. अब जब ये माइनर मेजोरिटी, ये ना छोकरा जब जवान हो गया, ओके, और यू कैन से व्हेन द माइनर has attained majority, he can elect to proceed with the suit or the application, or he can even decide कि matter बंद करो, मेरे को झगड़ा नहीं करना है. If he selects the former case to proceed with the case, he can apply for an order for discharging the next friend for leave to proceed in his own name. Leave means what? To permission. वो बोलेगा कि मैं अभी खुद के से ही नाम से केस करूंगा, या फिर if he elects to abandon the case, if a sole plaintiff or a sole application is there, the case can be dismissed. Next, ये सेम चीज है, रेमेडीज अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर, जैसे हम लोग ने ऊपर देखा था, तो ये एग्जाम में भी आ चुका है, वी हैव डन इट बिफोर. Then next, coming to summary procedures. Summary procedure basically means speedy settlement of dispute. Summary base है. अब क्या होता है, you tell me, क्या हर मैटर को लंबा खींचना जरूरी है? किस ऑब्वियस मैटर्स, कोई कोई जो एकदम क्लियर कट मैटर्स, उसको जल्दी एंड करना चाहिए. So summary cases are applied in cases of bills of exchange, hundis, promissory notes. You can try to quickly settle the matter. For example, a bill of exchange was drawn, 12th में किया था, bill of exchange pay to me or to my order, तो pay to me or my order a sum of rupees 50,000 for value received. अब तुमको वैल्यू रिसीव्ड हुआ, तुमने मेरा 50,000 नहीं पे किया, डिसऑनर हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, तो आई विल गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर समरी सूट के भाई देखो एवरीथिंग इज क्लियर, ही हैज एब्सोल्युटली नो डिफेंस, इसने साइन किया है, इसको प्रॉपर्टी, इसको गुड्स डिलीवर हो गए, डिलीवरी रिसीट देखो, मेरे को पैसा मिलना ही चाहिए. तब आई कैन अप्लाई फॉर क्विक सेटलमेंट ऑफ द केस. अब देखो क्विक कैसे होगा. लीव का मतलब इन लॉ मीन्स परमिशन. द डिफेंडेंट जो है जिसके ऊपर मैंने केस फाइल किया इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिफेंड द केस अनलेस ही एंटर्स एन अपीयरेंस विद इन 10 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ समन्स.
तो उसको कितने दिन का टाइम मिलता है कोर्ट के पास में आने के लिए? 10 days. इन 10 days डिफेंड. अगर वो नहीं आया ना 10 दिन में, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देगा. तो जब भी समरी सूट होता है तो डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, तो ऑपोजिट पार्टी को बोलेंगे 10 दिन में आओ और बताओ क्यों नहीं ऑर्डर पास करे. अगर नहीं आया ना 10 दिन में, ऑर्डर ही पास हो जाएगा. तो ऐसा ही कोर्ट्स जब फंक्शन करने लगेगी तभी ही अच्छा रहता है. However, such leave shall not be granted where the court is satisfied that the facts disclosed by the defendant do not indicate that he has a substantial defense or any defenses are frivolous or veracious. कोर्ट तुमको परमिशन नहीं देगी डिफेंड करने को अगर कोर्ट को लग रहा है कि तुम्हारे पास में सब्सटेंशियल डिफेंस नहीं है, बिकॉज सम थिंग्स आर वेरी क्लियर कट. इफ द क्लेम इज एडमिटेड बाय द डिफेंडेंट, क्लेम मान लिया डिफेंडेंट ने, तो फिर बाद में उसको ज्यादा लीव परमिशन देके फायदा नहीं है. द समरी सूट मस्ट बी ब्रॉट विद इन 1 year. तो टाइम लिमिट क्या दिया है टू ब्रिंग इन अ समरी सूट? विद इन 1 year from the time when the debt has become due. And that is it. We are done with the chapter. Now we'll just go through the exam questions, everything that has come. First of all, they have asked section 10. I told you you should know it by heart. Section 10 is doctrine of res subjudice. Can you tell me what is the name for this subjudice ka? It is also called as stay of suits. What was stay of suits? That if a matter is pending in one court, then the other courts should not take up the matter. Simple. Second, they have asked what are the remedies available to the defendants against an ex parte order. अगर वन साइडेड ऑर्डर पास हो गया तो तुम क्या करोगे? अपील में जाओगे, रिव्यू के लिए अप्लाई करोगे. वो सब हम लोग ने देखा. अपील में के लिए जाओगे, रिव्यू में you will ask for setting aside the ex parte order. You will say that it has been obtained by fraud. ये सब तुम्हारे डिफेंसेस रहेंगे. नेक्स्ट, distinguish between review and revision. Can you tell me review is made to the same court or no? Review is made to same court. Yes, same court. Whereas revision is made by a higher court squashing or setting aside erroneous judgment of lower court. That is called as revision. They revise the matter. अब इसका सेक्शन भी क्या था? Remember we had done 113, 114 and 115. It is reference, review, revision. तो ये 114 और दूसरा वाला होगा 115. Next, if we see what do you mean by temporary injunction? अब temporary injunction के लिए मेरे को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि वो injunction is a order of the court ordering a person either to do or abstain from doing something. Temporary injunction is given during pendency of the case. Case pending है, during that time they will tell you तुम ये करो, तुम ये करो. Okay, अब मैं क्या क्या बोल सकता हूँ injunction में कि भाई वो प्रॉपर्टी बिगाड़ देगा, वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देगा, वो प्रॉपर्टी डिफेंडेंट थ्रेटन कर रहा है, प्रॉपर्टी को इंजर कर देगा, he will try to dispose it off, he will try to sell it off. तो ये सब कोर्ट एक इंजंक्शन पास करेगी कि ऐसा सब मत करो till the final judgment is given. Then explain the provisions of summary procedure. Summary procedure is simply meaning as speedy settlement of the dispute. It is applied in bill of exchange, hundis, promissory notes. Courts कितने टाइम का देते हैं permission to the defendant to appear? कितना टाइम मिलता है उसको अपने आप को डिफेंड करने का? 10 days. सिर्फ 10 दिन मिलेगा. वो भी कोर्ट 10 दिन से भी कम देती कि अगर उसको लग रहा है कि उसके पास में कोई डिफेंस ही नहीं है, उसने एडमिट कर लिया अपनी गलती, तो फिर 10 दिन भी रुकने की जरूरत नहीं है. Then the next question that has come, what is res judicata and res subjudice? Can you tell me the section numbers? 10 and 11. 11. This is res subjudice
and this is res judicata. Res subjudice I think पहले भी आ चुका है. Res judicata मतलब क्या? No person shall be vexed twice. If a person has been a hearing has been done, he has been punished, then for the same matter you cannot file a case in the court. The object of the court is to bring an end to litigation, to ensure that there is no harassment to the parties, and there is also a concept of constructive res judicata, that matters which could have been brought in and you did not bring, that also is deemed that it has been decided and ended. Then December 2019 में they have asked set off counterclaim. तो ऑर्डर 8 रूल 6 सेट ऑफ क्या रहता है? मॉनेटरी एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ डेट. सो क्या वर्ड था उसका? रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ क्लेम. रेसिप्रोकल होता है तो वो हो जाता है where the plaintiff's claim is set off against the defendant's claim and only the balance order is passed. Counter claim में क्या होता है? Counter claim में the defendant is claiming from the plaintiff. तो उल्टा सीन हो जाता है कि अभी डिफेंडेंट ज्यादा क्लेम कर रहा है फ्रॉम द प्लेंटिफ. And that is it. We are done with the chapter.